Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. In our last video, we discussed about atom and subatomic particles. हमने ये भी देखा था कि subatomic particles को किन scientists ने discover किया है. So today we will study in depth about the discovery of electrons. In our last video, we just saw some basic idea about who discovered electrons and using what apparatus. लेकिन आज के वीडियो में हम उसी को इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट अस सी द की पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एंड कैथोड रेज के बारे में, यूजिंग विच द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड. उसके बाद हम देखेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स followed by charge on the electron, which was discovered by a scientist known as Millikan using his oil drop experiment. And lastly, हम देखेंगे mass of electron के बारे में. So in this video, I will cover almost everything about electrons from its discovery to its charge and also its mass. So today's video is going to be all about electrons. So let us begin. जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, the electron was discovered by J.J. Thomson in 1897 using experiments that involved cathode ray tubes. आज हम cathode ray tubes के बारे में in detail पढ़ेंगे. He was awarded the Nobel Prize in 1906. So ये हम already जानते हैं last video से कि electron was discovered by J.J. Thomson in 1897 using cathode ray tubes. लेकिन उनको ये आइडिया कहाँ से आया कि हमको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करना है, कि इलेक्ट्रॉन्स टाइप की कोई चीज हो सकती है. ये आइडिया बहुत साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत पहले से ही था, बिकॉज द वर्ड इलेक्ट्रॉन वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड जॉर्ज स्टोनी. बहुत पहले ही इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी. बहुत साइंटिस्ट ने इसको लेके डिबेट किया था. सो जे थॉमसन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. बट इनिशियली ही वाज ऑलरेडी वेरी इंट्रिग्ड अबाउट द एटम. J.J. Thomson discovered electrons by studying the electric discharges from his experiments using a cathode ray tube. मतलब जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब से जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनसे उनको ऑब्टेन हुए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, जिसको स्टडी करके ही अल्टीमेटली डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स. So from the cathode ray tube, he got something called electric discharges, which he studied and found that the electric discharges contain electrons. He studied the properties of cathode rays under the influence of electric and magnetic fields. कैथोड रे ट्यूब से जो डिस्चार्ज निकला उसका उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज. एंड ही स्टडीड द कैथोड रेज. उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टडी की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. मतलब उनके डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. एंड ही ऑब्जर्व द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज. He determined the presence of charged particles in the cathode rays, that is the electrons. मतलब जब उन्होंने स्टडी किया, उनको कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स का प्रेजेंस पता चला अपने कैथोड रेज में, which were ultimately the electrons. So by studying the electrical discharges or the cathode rays from his cathode ray tube, he studied the properties of the rays under electric and magnetic field, and उनको वहां से ये पता चला कि उस रे में कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो है अल्टीमेटली हमारे इलेक्ट्रॉन्स. So this is how J.J. Thomson ultimately discovered the electrons. He was already very interested in the structure of an atom, and already electrons के बारे में काफी debate चल रही थी. But he was the one who ultimately discovered and proved the existence of electrons. Now let us see how he discovered the electrons. He discovered the electrons using cathode rays, cathode ray tubes. वो कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, that we will see. So now our next topic of discussion is discharge tube and cathode rays.
So this is a basic structure of a discharge tube apparatus. तो ये ग्लास का बना होता है, कांच का होता है ये, एंड इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब. इट इज फिटेड विथ मेटल इलेक्ट्रोड्स. मेटल के दो इलेक्ट्रोड है जो एक हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्टेड है. जो नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसका नाम है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको कहते हैं एनोड. This will always be called cathode and anode. The electrode connected to the negative terminal of the battery is always called cathode, and the electrode connected to the positive terminal of the battery is always called anode. This you will study in detail when we will discuss the electrochemistry chapter. So एक glass tube है, उसमें दो electrodes है which is connected to a high voltage generator or a battery. अंदर का जो air है that is at a very low pressure. These are very important criteria. The high voltage generator and air at very low pressure. Discharge tube के अंदर जो air है, it is maintained at a low pressure. And there is a vacuum pump to maintain that low pressure inside the discharge tube. And this leads to the production of cathode rays. यहाँ से जो rays निकल रही है, उसको नाम दिया गया है cathode rays. So this is the entire schematic diagram of a discharge tube. It's a glass tube with cathode and anode inside, connected to a high voltage generator, and the air inside is at a very, very low pressure. A discharge tube is made of glass and it contains two metal electrodes sealed in it. मतलब उसके अंदर electrodes seal किए जाते हैं. The air inside the tube is kept under low pressure conditions. Very important. मैं बताऊंगी कि ये point important क्यों है. So the air inside the tube is kept under low pressure conditions and the electrodes are connected to a high voltage source. So जो कांच का ट्यूब है उसमें इलेक्ट्रोड सील्ड रहते हैं. अंदर का जो एयर है वो लो प्रेशर में रहता है और इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स. Rays originating from the cathode travel to the anode and thus it is known as the cathode ray discharge tube. मतलब यहाँ पे कुछ रेज जो जनरेट हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है, कैथोड से स्टार्ट होके एनोड ट्रेवल कर रही है. So that is why it is known as a cathode ray discharge tube, because the origin point of the ray is the cathode. So this is why इसको कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि रेज कैथोड से एनोड तक ट्रेवल कर रही है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर इज जनरली अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता. यू ऑब्वियसली डू नॉट गेट अ शॉक इफ यू जस्ट होल्ड योर हैंड आउटसाइड. लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं तो आपको करंट लग सकती है, लेकिन एयर से आपको कभी भी करंट नहीं लगती है, बिकॉज एयर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट एट सर्टेन कंडीशन एयर बिकम्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये कब होता है? जब बिजली कड़कती है. व्हेन लाइटनिंग हैपेंस, lightning is basically electric charge and it travels through air. So if air is a non-conductor of electricity, तो lightning discharge कैसे होती है? उसके conditions है, however, at very low pressure and at very, very high voltages, air becomes a good conductor. Lightning is a natural phenomenon and we cannot control nature. तो जब lightning होती है, automatically जो conditions रहते हैं, वो low pressure conditions and high voltage conditions में रहते हैं. And that is why air becomes a good conductor of electricity and that's why lightning can travel through air. बिजली जो कड़कती है वो आसमान में कड़कती है जहाँ पे air होता है, but the pressure becomes very low and the voltage becomes very high, which is why air can conduct that electricity. हमारे normal conditions में air is a non-conductor of electricity. So now if air can conduct electricity at low pressure and high voltage,
इसीलिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब का कंडीशन भी वैसे ही रखा है कि हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की है एंड एयर को अंदर लो प्रेशर में रखा है यूजिंग अ वैक्यूम पंप. So these two are very important points. And this principle is applied in the cathode ray discharge tube. एयर को हमें यहाँ पे गुड कंडक्टर बनाना है, जिसके लिए हमने हाई वोल्टेज जनरेटर और हवा को लो प्रेशर में रखा है. And so the cathode rays can travel from cathode to anode because now the air inside has become a good conductor. So this is a very important point to remember. कि air is normally a non-conductor, but to make it a good conductor, we connect a high voltage battery and we keep the air at low pressure. So this is the main principle of discharge tube कि क्यों कैथोड से एनोड तक रेस ट्रेवल हो रही है. So this is the logic behind it. अब मैंने बता दिया कि कैथोड से एनोड तक रेस ट्रेवल हो रही है, लेकिन वो रेज हम देख नहीं पा रहे हैं. सो हाउ आर वी बिलीविंग दैट इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली? ऐसा भी तो हो सकता है कि एनोड से कैथोड तक ट्रैवल कर रहा है. सो हाउ डू वी प्रूव दैट द रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इटसेल्फ? सो टू स्टडी दैट, J.J. Thomson modified his discharge tube. This is the modification. So the discharge tube is again the normal setting. Glass tube with cathode and anode, high voltage source, vacuum pump to keep the air at low pressure. लेकिन यहाँ पे हमारा जो एनोड है, जेजे थॉमसन ने उस एनोड को परफोरेटेड बना दिया. मतलब एनोड में उन्होंने कुछ छेद कर दिए छोटे छोटे. एंड पीछे का जो ग्लास है, एनोड के पीछे का जो ग्लास है, उन्होंने उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. अब ये उन्होंने क्यों किया, वी विल अंडरस्टैंड. बट लेट अस अगेन सी द मॉडिफाइड apparatus. द कैथोड इज सेम. एनोड में उन्होंने छेद कर दिए. हाई वोल्टेज हमारा बैटरी सोर्स है. वैक्यूम पंप भी है टू कीप द एयर एट लो प्रेशर, ताकि हमारा एयर गुड कंडक्टर बन सके. और एनोड के पीछे, छेद किए हुए एनोड के पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग की है. सो नाउ वी विल सी व्हाई he did that. What is the reason? The perforated anode discharge tube. तो अब इसका नाम हो गया परफोरेटेड एनोड डिस्चार्ज ट्यूब. परफोरेटेड मतलब जिसमें बहुत सारे छेद हो, उसको परफोरेटेड कहते हैं, परफोरेशन कहते हैं. So the anode is perforated and this discharge tube was devised to confirm that the flow of current was from cathode to anode. कि हम कैसे मान ले कि कैथोड से एनोड तक ही ट्रैवल हो रहा है, एनोड से कैथोड नहीं हो रहा है. सो टू कंफर्म दैट he devised this perforated anode discharge tube. Holes were made on the anode and the walls of the tube behind the anode was coated with zinc sulfide, which is a phosphorescent material. तो एनोड में उन्होंने छेद कर दिए. एनोड के पीछे का जो वॉल है ट्यूब का, उनमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, विच इज अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. नाउ व्हाट इज अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल? आपने शायद ग्लो इन द डार्क स्टिकर्स या फिर ग्लो इन द डार्क चीजें देखी होंगी. You keep them in the light, but when you switch off the light, they glow from themselves. This property is called phosphorescence. It is a material जिसके ऊपर अगर आप लाइट डालोगे या फिर कोई एनर्जी सोर्स डालोगे, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा. एंड जब वो एनर्जी सोर्स खत्म हो जाएगा, जब आप लाइट को स्विच ऑफ कर दोगे, उसी एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में स्लोली रिलीज करेगा. So that is called phosphorescence, and zinc sulfide is a very popular, very common phosphorescent material. तो इसकी कोटिंग की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ? When the discharge rays passed through the perforated anode and struck the zinc sulfide coating, a bright spot was developed. मतलब रेज निकल रही है जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो छेद वाले एनोड से टकरा रहा है, सम ऑफ द रेज आर पासिंग थ्रू दोज होल्स. कुछ जो लाइट है, कुछ जो एनर्जी है, वो उस होल से पास कर रहा है एंड इट इज स्ट्राइकिंग द फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट, एक ग्लो हमको ऑब्जर्व हुआ. तो ऑब्वियसली इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स, अगर आप एक लाइट के सामने खड़े होते हैं तो शैडो आपके पीछे ही होती है. तो यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड का जो स्पॉट है वो एनोड के पीछे था. मतलब जो लाइट है वो कैथोड से ही आ रही है. लेट मी शो यू.
सो यहाँ से जो रेज निकल रही है, कुछ रेज निकल रही है जिसका नाम है कैथोड रेज। इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ एनर्जी के फॉर्म में वो निकल रही है, लाइक अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो एनोड पे जो छेद हुए हैं वहां से इट इज पासिंग, सम ऑफ द एनर्जी इज पासिंग एंड दैट एनर्जी इज गेटिंग अब्सॉर्ब बाय दिस कोटिंग। उस एनर्जी को ये कोटिंग अब्सॉर्ब कर रहा है। अब जब हम यहाँ पे बैटरी ऑफ कर देंगे, कैथोड रेज का निकलना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ग्लो देखने को मिल रहा है। मतलब कैथोड से ही जो रेज निकल रही थी वो एनोड से पास होके यहाँ पे पीछे एक ग्लो दे रहा है ऑन द जिंक सल्फाइड कोटिंग। So using this apparatus, it was proved that the rays were coming from cathode only. कहीं और से rays originate नहीं हो रही, it is indeed the cathode rays. So when the discharge rays passed through the perforated anode and struck the zinc sulfide coating, bright spot was developed. इसी ब्राइट स्पॉट से उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो रेज निकल रही है वो कैथोड से ही निकल रही है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और उस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। अब हमने देख लिया कि कुछ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज निकल रहा था, उसका हमने ओरिजिन भी डिटरमाइन कर लिया कि वो कैथोड से ही निकल रहा है, इसलिए उसका नाम भी कैथोड रेज पड़ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो क्या उन कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स है? इसके लिए उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को और ज्यादा मॉडिफाई किया। अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी पार्टिकल प्रेजेंट। So now you can see the real discharge tube, not a diagram, जो कांच का बना है। कैथोड एनोड, यहाँ पे अगर आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो उस हिसाब से कैथोड एनोड भी बन जाएगा। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड द मॉडिफिकेशन that he did was he installed a little paddle wheel. ये है एक व्हील। अब इसका काम क्या है, इससे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था या फिर क्या उन्होंने समझा? लेट अस सी द स्कीमेटिक डायग्राम अगेन। If you can compare it, you will see it is just this diagram of the real one. So this is cathode, this is anode. तो यहाँ से obviously cathode से ही cathode rays निकलेंगी, तो जो निकल रही है, जब cathode rays निकल रही है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये व्हील घूम रहा है। The wheel is rotating. Arrows बने हुए हैं, मतलब the wheel started to rotate whenever he switched on the battery. बैटरी स्विच ऑन करने से कैथोड रेज निकल रही है, जब भी कैथोड रेज निकल रही है ये व्हील स्पिन हो रहा है। The glass wheel rotates and moves when cathode ray is present. तो उनको क्या समझ में आया कि कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स है जो इस व्हील से टकरा के उसको रोटेट करवा रही है। मतलब यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली समथिंग इज हिटिंग द व्हील विच इज वाई इट इज रोटेटिंग। ऐसे तो अगर नॉर्मली बैटरी ऑफ है, कुछ नहीं निकल रहा, तो व्हील भी नहीं रोटेट करेगी। जब कैथोड रेज जा रही है उसका मतलब कुछ तो ऐसा है कैथोड रेज में, कोई पार्टिकल है जो यहाँ पे टकरा के इस व्हील को रोटेट करवा रहा है। सो दिस इज हाउ वी फिगर्ड आउट दैट कैथोड रेज कंटेन सम पार्टिकल्स। अ डिस्चार्ज ट्यूब विद एन एनक्लोज्ड व्हील was used to study the cathode rays. उन्होंने एक सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, लेकिन इस बार उन्होंने अंदर एक व्हील फिट कर दी। It was observed that the wheel rotates when cathode rays are present. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी कैथोड रेज निकल रही है कैथोड से, तभी व्हील रोटेट कर रहा है। Hence, it was determined that cathode rays contain some kind of particles which strike the wheel and rotate its blades. मतलब कैथोड रे में कुछ तो पार्टिकल है जो व्हील को स्ट्राइक कर रही है, जो व्हील को धक्का मार रही है, उनको रोटेट करवा रही है। तो यहाँ से उनको पता चला कि कैथोड रे में कुछ पार्टिकल्स तो जरूर है। तो अब तक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेज के बारे में स्टडी किया। उन्होंने कंफर्म किया कि कैथोड रेज कैथोड से ही निकल रहे हैं एंड ऑल्सो ही सॉ दैट कैथोड रे कंटेन सम पार्टिकल्स। नाउ इट वाज टाइम टू क्लासिफाई दोस पार्टिकल्स कि वो पार्टिकल्स कैसे टाइप के पार्टिकल्स हैं। सो टू क्लासिफाई द कैथोड रेज, जो कैथोड रेज निकले उसमें से जो पार्टिकल है, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की अराउंड द डिस्चार्ज ट्यूब।
So in this diagram you can see the discharge tube, you can see the cathode, you can see the anode, और यहाँ से कैथोड रेज भी निकल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या नया किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी अराउंड द डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल है नीचे। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज अभी तक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, कैथोड रेज कैथोड से निकल के स्ट्रेट लाइन में एनोड तक जा रही थी, वो कैथोड रेज अब डेविएट होके पॉजिटिव जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ वो डेविएट हो गई, वो बेंड हो गई। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज स्ट्रेट जा रही थी, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, कोई डेविएशन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उन्होंने देखा कि कैथोड रेज बेंड हो चुकी है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव terminal of the electric field. So this was a very important observation कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रेज बेंड हो रही है। मतलब कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स है वो चार्ज पार्टिकल्स है एंड उसका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो अगर इनका चार्ज नेगेटिव है इसीलिए वो पॉजिटिव की तरह बेंड हो रहा है। So this was another very important observation. Similarly, after magnetic field, electric field, he applied a magnetic field also. So this is the cathode ray and he put a magnet over here. And इसमें भी उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन किया कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी कैथोड रे बेंड हो रही है, एक डायरेक्शन में इट इज बेंडिंग। सो इनिशियली कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, बट जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उन्होंने देखा कि कैथोड रेज बेंड हो चुकी है। सो दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन। In the absence of an electric or magnetic field, cathode rays travel in a straight line. कब स्ट्रेट लाइन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। In the presence of an electric field or a magnetic field, cathode rays show a deviation from their usual path. उनका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसमें उसने एक डेविएशन शो किया, एक बेंड हो गया वो। तो कब हुआ, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी। Thus, it was proved that cathode rays contained negatively charged particles, which are affected in the presence of an electric or a magnetic field. अगर पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं होता तो वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करता, वो कभी भी बेंड नहीं होता। बट सिंस इट बेंडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डेविएशन हुआ ये प्रूव करता है कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स है। क्या चार्ज है उनका, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हुआ है। सो इट वाज प्रूव दैट कैथोड रेज कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड particles. So now we can do a little summary of the cathode rays. तो क्या समरी कर सकते हैं हम अब कि कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये हमने फर्स्ट देखा था जब हमने एनोड में छेद कर दिया था, पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी, कि कैथोड रेज स्टार्ट होती है कैथोड से ही एंड एनोड की तरफ ही जाती है, किसी इधर उधर वो ट्रेवल नहीं करती। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन क्या है कि कैथोड रेज कंटेन सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। कुछ तो भाई उसमें है, कुछ पार्टिकल्स उसमें है जो व्हील से टकरा के व्हील को रोटेट करवा रही है, मतलब कैथोड रे में कुछ पार्टिकल्स है। दिस वाज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। And the third observation is the particles present in cathode rays are negatively charged and they are finally known as electrons. तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, हमने अप्लाई नहीं की थी, जे थॉमसन ने किया था। जब उन्होंने अप्लाई किया था तब उनको ये पता चला था कि वो अपने नॉर्मल जो पाथ है उससे वो बेंड हो रहा है एंड ही कंक्लूडेड कि जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसी को बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया। So these are the 3 points which he finalized from his observation endless experiments using discharge tube. ये experiments उन्होंने अंदर के मेटल प्लेट्स को चेंज करके देखा, अंदर के गैस को चेंज करके देखा, लेकिन हर वक्त उनको यही ऑब्जर्वेशंस मिले।
सो उनको पता चला कि जो भी एलिमेंट हो, उसका जो भी एटम हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे ही. So this was a very, very important discovery by J.J. Thomson. So this was all about discharge tube and cathode rays कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना, उसकी डिस्कवरी की. नाउ वी विल कम टू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो जे थॉमसन ने ही कैलकुलेट किया था. मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है डिवाइडेड बाय उसका जो मास है, उसका जो रेशियो है, दैट वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन. सो अगेन जे थॉमसन इज बैक एंड दिस इज द apparatus that he used to calculate the charge to mass ratio. ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ही है, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है. तो यहाँ पे कैथोड है हमारा, एनोड है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमारा जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था वो भी यहाँ पे है. So this is the apparatus that he used to find the charge to mass ratio. J.J. Thomson measured the charge to mass ratio of electrons by applying an electric field and a magnetic field perpendicular to each other as well as the path of the cathode rays. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन्होंने ये परपेंडिकुलरली अप्लाई किया था, perpendicular to each other also and the straight line of the cathode rays also. This resulted in a deviation of the cathode rays from its original path. हमने जैसे देखा कि जब ऐसे हम अप्लाई करते इलेक्ट्रिक फील्ड तब एक डेविएशन होता है, तो उन्होंने भी सेम ऑब्जर्वेशन फिर से किया कि एक डेविएशन हो गया. But by balancing the electric and magnetic fields, the original path of the cathode rays could be restored. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से बैलेंस किया जाए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज और डेविएट नहीं कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है. तो इनिशियली उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी परपेंडिकुलरली. उन्होंने एक डेविएशन देखा जो उन्होंने पहले भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया, ऐसे बैलेंस किया कि कैथोड रे का जो ओरिजिनल पाथ था, जो स्ट्रेट लाइन था, वो फिर से वापस आ गया. सो ए इज द डेविएटेड वन. यहाँ पे एक डेविएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. सी पे भी डेविएशन हो रहा है. यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है, यहाँ पे एनोड के होल से पास होके यहाँ पे वो ग्लोइंग स्पॉट्स दिखा रहा है. तो उसकी वजह से ही कुड अंडरस्टैंड द डेविएशन कि कितना वो बेंड हुआ है. जहाँ पे स्पॉट दिख रहा है वहां पे ही मतलब वो लाइट वहां पे ही ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में. अगर स्ट्रेट लाइन में स्पॉट दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. अगर ऐसे ऊपर नीचे है मतलब वो अपनी स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर चुका है. सो दीज आर द डेविएटेड स्पॉट्स ए एंड सी. लेकिन फिर जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस किया केयरफुली, उनको फिर से स्ट्रेट लाइन में ही एक स्पॉट मिला विच इज बी. सो दिस ही अचीव्ड बाय बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये जो डेविएशन का एंगल है, एंगल से वो डेविएट हुआ है, स्ट्रेट लाइन के साथ एक एंगल बनाया है. सपोज दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो अनदर एंगल. तो इन्हीं एंगल्स को उन्होंने स्टडी किया एंड उसको यूज करके ही कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशियो कि कितने एंगल में ये डेविएट हो रहा है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो ये डेविएशन ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी. तो ये सारे पैरामीटर्स उन्होंने एडजस्ट करके कैलकुलेशंस करके फाइनली चार्ज टू मास रेशियो निकाला. तो उन्होंने क्या देखा, मोर द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ग्रेटर इज देयर इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो ग्रेटर इज द डेविएशन. मतलब पार्टिकल पे जो चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा वो पार्टिकल, उतना वो ज्यादा इंटरैक्ट करेगा. किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? ऑब्वियसली विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एंड जितना वो ज्यादा इंटरैक्ट करेगा उतना ही वो अपने स्ट्रेट पाथ से वो इधर उधर चला जाएगा. सो ग्रेटर विल बी द डेविएशन. मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर पार्टिकल्स पे चार्ज ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल्स है, ज्यादा चार्ज है, तो वो ज्यादा इंटरैक्ट करेगा एंड उसके रिजल्ट में वो ज्यादा ने स्ट्रेट लाइन से वो इधर उधर डेविएट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है उन्होंने ऑब्जर्व किया, लोअर द मास ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल का मास जितना कम होगा उतना वो हल्का होगा, लाइटर द पार्टिकल्स,
ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना वो इजीली इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर कोई हैवी पार्टिकल है, इजीली वो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहेगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाना पसंद करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल का जो मास है, उनका जो वजन है, अगर वो हल्का होगा, देन इट विल बी इजियर फॉर देम टू डेविएट एंड ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। एंड लास्टली, greater the strength of electric and magnetic fields, more is the deviation। मतलब जितना आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, उतना डेविएशन होगा, क्योंकि फील्ड ही हमारी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा अपनी तरफ उसको खींचेगा पार्टिकल्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, द डेविएशन विल बी मोर। सो द थ्री ऑब्जर्वेशंस विच थॉमसन डिड, कि अगर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। अगर उनका मास कम है, तो वो ज्यादा हल्का होगा, ज्यादा इजीली वो डेविएट करेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो भी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। जे थॉमसन कैरिड आउट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि कितना वो डेविएट कर रहा है। वो जो थीटा एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो थीटा कितना ज्यादा या कितना कम है, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन विच इज थीटा, एंड रिलेटेड दैट डेटा टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ्स को उन्होंने चेंज किया, एंड उसको करने के रिजल्ट में कितना थीटा बढ़ा या कितना वो घटा, वो उन्होंने मेजर किया, एंड इसका एक रिलेशन निकाला बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन थीटा एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दिस ही स्टडीड। Using the observations, he was able to determine the value of the charge to mass ratio E, which is the charge, and mass ME of electrons as E by ME is 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb per kg। जहां मास है केजी में, चार्ज जो है वो है कूलम में। तो ये इंडिविजुअल चार्ज या फिर इंडिविजुअल मास फिलहाल उनको नहीं पता थी, लेकिन उनको ये रेशियो पता चल गया था कि चार्ज और मास का जो रेशियो है वो हमेशा 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी है। तो ये उन्होंने कैसे निकाला? उन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन के साथ अपने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किया, एंड रिलेट करके उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू मिला। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग द चार्ज एंड मास। उनको इंडिविजुअल चार्ज या फिर मास पता नहीं चली, लेकिन उनको ये रेशियो जरूर मिल गया उनके एक्सपेरिमेंट से। So charge to mass ratio was founded by J.J. Thomson in this method, and the value is 1.75 into 10 to the power 11 coulomb per kg। अब आता है सिर्फ चार्ज पे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड इट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट मिलिक, एंड ही वाज असिस्टेड बाय अनदर साइंटिस्ट नेम हार्वी फ्लेचर। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट करके, मेनली इट इज नोन एज मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, बट ही वाज असिस्टेड बाय अनदर साइंटिस्ट, एंड उन दोनों ने मिलके चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया था। एंड ही दिस इज अ वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड और मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे नए साइंटिस्ट रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन, जिन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था या फिर उन्होंने कैलकुलेट किया था। Millikan oil drop experiment conducted in 1909 aimed to determine the charge of an electron। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उस डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। The experiment involved observing tiny charged oil droplets suspended in an electric field between two charged plates। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए, तेल के कुछ ड्रॉप्स लिए थे, उनको चार्ज्ड फॉर्म में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सस्पेंड कर दिया, एंड उसको जब उन्होंने स्टडी किया तब ही कुड कैलकुलेट अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में हमने स्टडी किया था, वैसे ही हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में भी देखेंगे। This is the apparatus, a simple diagram of Millikan's oil drop experiment apparatus। तो पहले देख लेते हैं कि उनके apparatus में उन्होंने क्या क्या यूज किया था।
तो यहाँ पे है एक एटमाइजर. एटमाइजर इज बेसिकली लाइक अ वेरी फाइन स्प्रे बॉटल. जो स्प्रे बॉटल्स होते हैं परफ्यूम के लिए या फिर कोई लिक्विड के लिए, बहुत जब फाइन पार्टिकल्स में वो किसी चीज को रिलीज करता है तब उसका नाम होता है एटमाइजर. मतलब पार्टिकल का जो साइज होता है, जो ड्रॉप वो रिलीज करते हैं, वो ऑलमोस्ट एटम के साइज का होता है. इतना छोटा होता है, इतना फाइन होता है, इसलिए उसका नाम है एटमाइजर. सो ही यूज्ड एन एटमाइजर टू स्प्रे द ऑयल इनटू वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स. एक इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अप्लाई किया है. चार्ज मेटल प्लेट है दोनों. पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट है, नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट है. So there are two metal plates. This is a microscope to study the oil drops. यहाँ पे है एक्सरे सोर्स विच इज द आयनाइजिंग रेडिएशन. मतलब अंदर का जो एयर है उसको चार्ज करने के लिए एक एक्सरे सोर्स है. मतलब जो ऑयल हमारे यहाँ पे जाएगा, वो ऑयल ड्रॉपलेट को चार्ज करने के लिए एक्सरे सोर्स है. और ये एक्सरे सोर्स से पास करते हुए हमारा जो नॉर्मल ऑयल ड्रॉपलेट था, यहाँ पे सारे नॉर्मल ऑयल ड्रॉपलेट, यहाँ पे जो है हमारा चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट है. यहाँ पे एक चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, मतलब नॉर्मल ऑयल उन्होंने स्प्रे किया, वो ऑयल एक एक्सरे सोर्स के रेडिएशन से पास होके चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट बन गया. उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है. कैसे स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख के. सो दिस इज द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट apparatus. तो उन्होंने स्टडी करके क्या ऑब्जर्व किया? लेट अस सी. The X-ray source was used to ionize the air inside the chamber, and the oil droplets got charged due to collisions with the gaseous ions. मतलब ये जो एक्सरे सोर्स हमने देखा यहाँ पे, ये जो एक्सरे सोर्स है वो अंदर का जो एयर है उसको चार्ज कर दिया. अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो एयर के पार्टिकल से कोलिशन करके उसको भी एक चार्ज हासिल हो गया. इट बिकेम अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट. दैट इज व्हाई द एक्सरे सोर्स वाज यूज्ड. तो एक्सरे सोर्स से हमने गैस को पहले, मतलब एयर जो है अंदर, उसको आयनाइज किया. फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स उनके साथ कोलाइड करके चार्ज्ड पार्टिकल्स बन गए. मिलिकन स्टडी द मूवमेंट ऑफ द चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल प्लेट उन्होंने लगाए, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में, उसकी इंटेंसिटी को उन्होंने वेरी किया. एंड उसको वेरी करने से ऑयल ड्रॉपलेट का मूवमेंट कैसे चेंज हुआ, उस उन्होंने वही स्टडी किया. फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशंस मिलिकन वाज एबल टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट. उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसमें से कुछ कैलकुलेशंस करके उन्होंने फाइनली जो चार्ज रहता है हर एक ड्रॉपलेट का, वो उन्होंने कैलकुलेट किया. मतलब पहले उन्होंने एक ऑयल ड्रॉपलेट को चार्ज किया, फिर उस ऑयल ड्रॉपलेट का जो मूवमेंट है वो उन्होंने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड्स की इंटेंसिटी को चेंज करके, एंड उससे कुछ कैलकुलेट करके उन्होंने अल्टीमेटली चार्ज निकाला. Millikan concluded that the magnitude of the electrical charge on the oil droplets, जिसको हम Q बोल सकते हैं, is always an integral multiple of the electrical charge E, which is the charge on an electron. उन्होंने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट स्टडी किए एक एक करके, लेकिन उनको हर बार एक कॉमन ऑब्जर्वेशन हासिल हुआ, विच इज एक ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम वैल्यू विच इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. मतलब Q इक्वल्स टू NE, where N is 1 2 3 4 so on. डेसिमल में नहीं, कुछ इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, लेकिन इंटीजर इनटू E. उन्होंने हमेशा जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स उन्होंने स्टडी किए, उनको हमेशा यही कंक्लूजन उनको मिला कि जो चार्ज है वो किसी एक वैल्यू का मल्टीपल है. 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, लेकिन वो समथिंग जो वैल्यू है, ये जो E का वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज फिक्स. हर ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज अलग था, लेकिन उस चार्ज से अगर हमने E वाले चार्ज को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमको हमेशा एक इंटीजर मिला उनको, 1 2 3. तब जो E का जो वैल्यू है ये है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज फिक्स्ड.
तो लास्ट में उनको पता चला द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल्स टू -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि हमें ऑलरेडी जे थॉमसन ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव रहते हैं, इसलिए नेगेटिव है। उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड ऑयल ड्रॉपलेट में जो चार्ज है वो हमेशा इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, 1 into this, 2 into this, 3 into this। ऑलवेज उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हुआ, इसके साथ कोई इंटीजर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि 2 into 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 5 into 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 7 into कुछ भी, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये ही चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप जब भी एडवांस लेवल के कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, a very, very important value, which is the charge on one electron. And this, it was found out, it was discovered by Millikan, Robert Millikan, using his oil drop experiment. So, अब हमारे पास ऑलरेडी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमको पता है, ऑलरेडी जे थॉमसन चार्ज बाय मास का रेशियो निकाले हैं, सो नाउ वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, which is our next topic and the last topic of the topic of electron, जो है उसका mass. From the charge to mass ratio of electron by जे थॉमसन, मतलब जे थॉमसन ने क्या कैलकुलेट किया था? चार्ज टू मास रेशियो, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन and the charge on an electron by R. Millikan. The mass of an electron was found out to be E by me, ये जो रेशियो है जे थॉमसन ने किया निकाला था, एंड द चार्ज मिलिकन ने जो निकाला है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ही चार्ज होता है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हमारा जो मैग्नीट्यूड है। सो वी नो E by me एंड वी नो द वैल्यू ऑफ E। सो me will be E by this value. So the mass of electron Me is equals to the charge on an electron, which is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, divided by the ratio, which is 1.7588 into 10⁻11 coulomb per kg. तो यहाँ पे यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, केजी ऊपर चला जाएगा, kg-1 है द पावर। So the value of the mass of one electron was 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। मतलब कितना कितना ज्यादा हल्का है, -31, मतलब 0.00 करके ऐसे 31 zeros, उसके बाद 91। So this was the mass of one electron। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। This is also a very important value that is required in several calculations। तो ये भी एक बहुत ही important value है। तो हमारे दो important values क्या क्या है? एक है हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 to the power minus 19 and the mass of electron which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs। बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन में ये मास हमको यूज होता है, but otherwise the mass of electron is very very less, as you can see. So from the charge to mass ratio by J. Thomson and the charge of an electron by R. Millikan, we could calculate the mass of electron, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So this is the mass. The mass of an electron is extremely less in value. बहुत ही कम वैल्यू है इसका, बहुत ज्यादा, and is almost negligible। कि मतलब कोई मास ही नहीं है, कि इतना कम मास है तो उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास भी बहुत ही कम है अगर आप किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें, कि हम तो ये -31 kg इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा कम है। So it is extremely less and it is almost negligible in compared to the masses of proton and neutron। The mass of electrons do not
do not significantly contribute to the overall mass of an atom and is often neglected in calculations. इजी कैलकुलेशंस में या फिर मास नंबर के कैलकुलेशंस में हम इलेक्ट्रॉन के मास को कभी भी कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये इतना ज्यादा कम है, इसका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली है, अगर हमने वैल्यू निकाला है मतलब मास है मतलब कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। So mass of electrons do not significantly contribute to the overall mass of an atom. Atom का जो overall mass है, it is mainly contributed by protons and neutrons. Electrons का ज्यादा कुछ role नहीं है इसमें, because the mass is extremely less and is often neglected in mass number calculations. लेकिन बहुत detailed, बहुत बारीकी से अगर आप कोई calculations करेंगे, advanced physics में जो calculations होते हैं, इसमें ये mass बहुत ही important है. But for normal calculations, this mass is sadly neglected because of its extremely low value. So हमने ultimately देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे उसका चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया, फिर उसका चार्ज निकाला गया एंड अल्टीमेटली इट्स मास वाज फाउंड आउट. Thus electrons are fundamental building blocks of an atom. ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम व्हिच ऑर्बिट द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे स्टिल नहीं रहते, वो हमेशा न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जो हमने प्रूव कर दिया हमारे साइंटिस्ट ने. एंड देयर मास इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मास है. मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज अगर आप बताएं तो उनका चार्ज होता है नेगेटिव, मास होता है बहुत ही कम. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, very important, the number of electrons in the outermost shell govern the overall stability of an atom. ये आप अपने जूनियर क्लासेस में भी देखे हैं. इसीलिए रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, गेन होते हैं, कैन्स बनते हैं, एनायंस बनते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का मेन यही रोल है कि इनका जो नंबर है आउटर मोस्ट शेल में वो डिटरमाइन करता है कि वो एटम या फिर वो एलिमेंट कितना ज्यादा स्टेबल होगा. नोबेल गैसेस जो होते हैं उनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होते हैं कि उनको कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने या फिर देने की जरूरत नहीं है. But electrons are the one which govern the stability of an atom. That is why it is one of the most fundamental building blocks of atom. उनका चार्ज होता है नेगेटिव, उनका मास होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. So this was all about electrons. We saw its discovery from cathode rays, from the particles जो wheel को rotate किया. फिर we studied the cathode ray properties under electric and magnetic field, कैसे वहां से charge to mass ratio निकाला गया, फिर कैसे charge निकाला गया from the oil drop experiment, and finally the mass of the electron. So this was all about the electrons and its discovery, and I hope you have found this video informative, interesting and helpful. The values of the charge and the mass of electrons are very important, especially the charge on the electron is very, very important. So you should always keep in mind. Thank you for being a part of today's lesson. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy, where you will get regular classes and also engaging content via shorts and reels. And most importantly, we will have problem solving and doubt clearing sessions to solve your queries. I would like to request you to subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you haven't subscribed already, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you so much.